Yes, good afternoon and a warm welcome to the session. Dear students, today we are going to learn how to find particular integral of exponential function by short method. In the last lecture we have seen how to obtain complementary function. Today we will see how to obtain particular integral of exponential function by short method. As usual, there will be a quiz based upon this discussion and you have to necessarily take up the quiz. Recall that general solution of a non-homogeneous LDE with constant coefficients is nothing but addition of complementary function and particular integral. Complementary function is nothing but general solution of corresponding homogeneous LDE with constant coefficients. And particular integral, today we will see how to obtain using short method. So this you just remember, you will be taking up that quiz, so this will be beneficial. That general solution of the homogeneous LDE, this is the representation of a homogeneous LDE. Its general solution will be nothing but dependent variable is equals to CF. Y is equals to the complementary function will give you solution of this homogeneous LDE. So this will help you in quiz. This point I have also mentioned it there. Now let's begin. Before going to particular integral, there is general integral. What is general integral? General integral is an solution which is an implicit function of f of x, y and c. So they x, y and c will be combined together and they cannot be extracted. So that solution is called general integral. Now what is particular integral? An integral which is obtained from this general integral by giving some particular value to this constant is called particular integral. This is definition just for your knowledge. Now you consider a non-homogeneous LDE with constant coefficients. You know non-homogeneous LDE with constant coefficients is written in this form. All of you remember this form? Standard form, compact form, which we call f of d operating on y giving x of x. You remember this? F of d operating on y is equals to x of x represents a non-homogeneous LDE with constant coefficients. That day we have derived this equation. Now what we'll do, for the sake of convenience, let me denote this capital X of x by just x. This is merely notational change, nothing more than that. So अब f of d operating on y giving capital X function, right? We are interested in finding the particular integral. Particular integral is obtained using this formula. What we have to do, f of d is an operator function of d. You take its reciprocal 1 upon f of d and operate it on the right hand side function. This is the formula for particular integral. What is particular integral? 1 upon f of d operating on x. You remember this forever. Particular integral is 1 upon f of d operating on x. So this is inverse operator of f of d. So now there are many methods to obtain particular integral. In short, it is called PI. General method, method of variation of parameters, and short method. Today we are specifically focusing on short method. And in that first type we are taking type 1. So what is the specificness of this method? It is applicable when your given function is of certain special form. So for this special forms only this method will work. Remember this. So we have to consider this LDE, f of d operating on y is equals to f of x. This is non-homogeneous LDE with constant coefficients, right? So if the right hand side function contain exponential function in it, say e raised to ax plus b, okay, it is consisting the function e raised to ax plus b. E raised to ax plus b is one of the right hand side functions. Then how to obtain particular integral corresponding to that function? So by formula it is 1 upon f of d e raised to ax plus b. Now a is the coefficient of x and b is a constant. So the formula is
1 upon f of d e raised to ax plus b, which is nothing but particular integral corresponding to this function. It is equals to, by short method formula, the formula is 1 upon f of a into e raised to ax plus b. So directly what you have to do, if you are asked to obtain this value, instead of d in this polynomial, you will substitute a. You will recognize a, you will substitute d is equals to a, you will obtain f of a, 1 upon f of a into e raised to ax plus b as it is. So on the left hand side it was this operator operating on exponential function, and the answer now is 1 upon f of a into e raised to ax plus b. But to use this formula there is one condition. What is the condition? F of a should not be equals to 0. This is the condition that needs to be satisfied before using this formula. So let me recall once again. See, you are given a exponential function in the right hand side of f of dy is equals to capital X, and you want to obtain particular integral corresponding to that function. Then how will you proceed? 1 upon f of d e raised to ax plus b, which is pi of this function, is nothing but 1 upon f of a. Instead of d you have to substitute a, 1 upon f of a into e raised to ax plus b. F of a should not be equals to 0. What does it mean? A should not be a root of f of d is equals to 0. If a is not a root, then this formula is applicable. If a becomes root, we will see what we have to do further. यहाँ तक आ गया समझ में? Is this clear to each one of you? आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, थोड़ा जोर से बोलती हूँ मैं. आज मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश कर रही थी, बट नेवर माइंड. यहाँ तक आ गया सबको समझ में? अभी हमने क्या डिस्कस किया? पर्टिकुलर इंटीग्रल ढूंढना. अगर आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे ढूंढोगे? तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला रहता है? 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑन ई रेज टू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ ए. डी के जगह पे उस पॉलिनोमियल में ए रखोगे, ए सब्सटीट्यूट करोगे. ए के जगह डी के जगह ए, डी स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर, डी क्यूब के जगह ए क्यूब एंड सो ऑन. एफ ऑफ डी में डी के बजाय ए ले लोगे तो वो आ जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ ए इंटू ई रेज टू ए एक्स प्लस बी. ये प्रोवन फॉर्मूलाज हैं, आपको सिर्फ इनको यूज करना है. मेथड समझ लीजिए यूज करने की. 1 अपॉन एफ ऑफ ए इंटू ई रेज टू ए एक्स प्लस बी. अगर ये आपको क्लियर है तो मैं एग्जाम्पल की ओर बढ़ती हूँ और फिर उसके बाद में एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है. ठीक है, आइए एग्जाम्पल पर. स्क्रीन विजिबल है? यस. फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो अभी हम सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल ढूंढ रहे हैं. फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 5 ऑपरेटिंग ऑन y गिविंग e रेज टू 2x. अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. राइट हैंड साइड में a की फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है. e रेज टू ए एक्स प्लस बी से अगर कंपेरिजन करें तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 0 है. b 0 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. a कोएफिशिएंट है x का, वो नॉन जीरो ही रहेगा, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर. लेकिन b 0 हो सकता है और b का एज सच कोई रोल भी नहीं है. राइट तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ढूंढना है. पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन राइट हैंड साइड फंक्शन. राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही फंक्शन है अभी के लिए. तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी. एफ ऑफ डी कितना है हमारा? डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 5. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्मूला से 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन ई रेज टू 2x पर्टिकुलर इंटीग्रल रहेगा. अब इसको इससे कंपेयर करो तो what will be the value for this? 1 upon f of d e raised to ax plus b is equals to 1 upon d च्या ऐवजी a ठेवायचं. d square plus 3 into 2 plus 5 into e raised to 2x plus 5. हमने फॉर्मूला लगा दिया. यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और ऑब्वियसली 2 इसका रूट तो नहीं है. 2 इसका इज इक्वल्स टू 0 का रूट है क्या? नहीं है.
तो केस फेल नहीं होने वाली, उसे केस फेलियर कहते हैं, वो केस फेल नहीं होने वाली। वो आपको कैसे पता चलेगा, डी को यहाँ पे 2 रखोगे तब पता चलेगा। नॉन ज़ीरो वैल्यू आई है मतलब e⁻² + 5 अपॉन 15 पर्टिकुलर इंटीग्रल है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। आ रहा है ये आपको समझ में? यस। अभी आप थोड़ा मुझे चैट पे लिखिए, आपको अगर समझ में आ गया है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देती हूँ। यस, ऑल ऑफ यू, आर यू देयर? यस, shall I give you the example now? Am I audible? I'm getting no response. Are you there? CS PI समझ में आ गया एक्सपोनेंशियल का? ओके, ठीक है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये एग्जांपल था, पीआई ढूंढना था। इसका पीआई रहेगा 1/f(d) ऑपरेटिंग ऑन राइट हैंड साइड फंक्शन। राइट हैंड साइड फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, ए की वैल्यू b है, b की 0 है, d की जगह पर a रखना है, इंटू e⁻²x विल बी द आंसर। तो ये 2² + 6 + 5 15 हो गया। दिस इज द आंसर। फाइंड, अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d² + 4 ऑपरेटिंग ऑन y गिविंग मी e⁻³ + 4। Find the particular integral of d² + 4 operating on y giving e⁻³ + 4. Particular integral will be 1/d² + 4 operating on e⁻³ + 4. What will be the answer? आंसर यहाँ पर छुपा के रखा है मैंने, पहले आप बताएंगे फिर हम वेरीफाई करेंगे। यस, टेल मी द आंसर। Find the particular integral of d² + 4 operating on y equals to e⁻³ + 4. d² + 4 का इनवर्स ऑपरेटर इस पे ऑपरेट होगा। 1/d² + 4 शुड ऑपरेट ऑन e⁻³ + 4. What is the answer? Share your answers. आंसर प्लीज। 2i कैसे आएगा? e⁻³ + 4/13 13 आया मैम, अपॉन 30 e⁻³ + 4/13। हाँ बरोबर आहे कारण ए 3 घेतला तर इथे 3चा स्क्वेअर 9 and Plus 4. Yes, 9 + 4 13 e⁻³ + 4/14 13 सॉरी। आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। यस, e⁻³ + 4/13 आ रहा है आपके समझ में? वेरी गुड अश्विनी, सबको आ रहा है। आगे बढ़ना है क्या? एक एग्जाम्पल लिया हमने, वो उस एग्जाम्पल में ए रूट नहीं था, एक भी बार रूट नहीं था, इसीलिए ये डायरेक्टली आसानी से हो गया। शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ? यस, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d² + 6d + 9 operating on y is equals to 6 into e⁻⁻4x. Particular integral is equals to 1/f(d) operating on 6 e⁻⁻4x. This is our f of d. E equals to 6 is a constant, we can take it outside. So 6 into this operator should operate on e⁻⁻4x. It was coefficient of exponential, so we could take it outside. Had it been 6 plus, we cannot take outside. यहाँ पे बाहर ले सकते हैं। 6 into operator should operate on e⁻⁻4x. a की वैल्यू -4 है, -4
इसका रूट नहीं है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके रूट्स क्या हैं? -3 एंड -3, तो फॉर्मूला लग जाएगा। ऐसे भी हम लगा के भी चेक कर सकते हैं। डिनोमिनेटर 0 होगा तो फिर समझ आ जाएगा रूट है या नहीं, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 6 इंटू डी ऐवजी ए सब्सटीट्यूट करायचं आहे। ए की वैल्यू -4 है, -4 होल स्क्वेयर प्लस 6 इंटू -4 प्लस 9 इंटू e⁻⁴x एज इट इज। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ये ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन दिस फंक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाता है फॉर्मूला लगाने के बाद में। दिस इज -4 का स्क्वायर 16, 6 इंटू -4 इज -24 एंड प्लस 9। सो इन टोटल दिस इज हाउ मच? 16 minus 24 is -8 and 9 minus 8 is 1. So the answer is 6 into e⁻⁴x. So this is how we can obtain the particular integral of this example. यहाँ पे 6 कांस्टेंट कोएफिशिएंट था, उसको साइड में रख के ऑपरेटर इस पे चलाया और ए की वैल्यू निगेटिव थी। ये डिफरेंस था दोनों एग्जाम्पल में। अगर ये आपको क्लियर है तो अब ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d² + 4d + 4y = 7 e⁻⁻3x. गो फॉर दिस। d² + 4d + 4 ऑपरेटिंग ऑन y = 7 e⁻⁻3x। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ढूंढ के बताएंगे। व्हाट इज द सॉल्यूशन? आई मीन व्हाट इज द PI? पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है इस एग्जाम्पल का? Example 4. Find the particular integral of d² + 4d + 4 operating on y = 7 e⁻⁻3x. ये f(d) है, इसका रेसिप्रोकल इस पे ऑपरेट होना चाहिए। 7 इंटू 1 ये इस पे ऑपरेट होगा। a की वैल्यू -3 है, a को -3 रखना है। Answers? I'll wait for a minute. ये एग्जाम्पल, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d² + 4d + 4 operating on y giving you 7 into e⁻⁻3x. मैम 7 into e⁻³ आता है। 7 into e⁻3? हाँ, नीचे 1 आता है। 1, हाँ नीचे 1 आता है, तो आंसर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? आंसर कितना आ रहा है? 7 into e⁻⁻3x upon 1. यस करेक्ट। आपने ना पहले सिर्फ 3 बोला था, 3x, जैसे कि आपने पिछली बार भी रूट में वो x लेना भूल गए थे आप, वो होता है आपका, इसलिए मैंने फिर से 7 e⁻⁻3x, दैट्स द आंसर। परफेक्ट। आ रहा है सभी को? आर यू गेटिंग इट? शुड वी प्रोसीड फर्दर? आगे बढ़े? खूप सोपं होतं। अब्दुल गेटिंग इट? अभी अभी ज्वाइन किया है आपने, आ रहा है समझ में? अश्विनी आलं का? पुढे जायचंय का? वेर इज पूजा? पूजा जमलं का? किरण, सचिन, धीरे धीरे ले रही हूं मैं आज। चलो समझ गया है तो आगे बढ़ते अभी। तो इसमें था कि जो a था वो रूट नहीं था f(d) = 0 का। अब हो सकता है वो रूट भी रहे,
कोई नंबर या तो उस इक्वेशन का रूट रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो हमने सीख लिया कि ये फॉर्मूला है और ये लगाना है। अब अगर रूट रहेगा और रूट एक बार है तो कैसे करेंगे? रूट है और एक बार है तो कैसे करेंगे? तो टाइप 1.2 ले लेते हैं अभी। टाइप, हेलो मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम एक बार शुरू से स्टार्टिंग से बताइए ना मैम थोड़ा। कौन बोल रहा है ये? अब्दुल, आपने लेट एडमिट हुए अभी। अब थोड़ा सा अभी सिर्फ इसको कंटिन्यू कीजिए क्योंकि लेट हो जाएगा फिर हमें। मैं तो नोट्स भी शेयर करूंगी। अभी आप देखिए हो जाएगा। ऐसे लेट हर कोई लेट आके अगर बोलेगा फिर से शेयर करो तो कैसे पॉसिबल है? मैंने तो 10 मिनट पहले ऐड होने को बोला था, आपको ज्वाइन करने को बोला था। अभी हो जाएगा, ज़्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है आपका। आप अभी इसको ये कर सकते हो, ठीक है। टाइप 1.2 इफ वी अप्लाई, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। लेकिन हमें पता चला कि एफ ऑफ ए 0 है, मतलब कि डिनोमिनेटर 0 हो रही है, मतलब ए रूट है एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0 का। तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो डिनोमिनेटर 0 होना यानी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, तो उसको कहते हैं केस फेलियर। मतलब उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो क्या करना पड़ेगा? दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला कैसे एग्जीक्यूट करना है? देखो, एफ ऑफ ए 0 है, आपको पता है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमें ढूंढना है इसका फॉर्मूला रहेगा x इंटू रिमेंबर x इंटू 1 अपॉन एफ डैश डी ऑपरेटिंग ऑन ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। क्या करना पड़ेगा आपको? x इंटू एक x लेना पड़ेगा इंटू 1 अपॉन, ये जो ऑपरेटर है ना इसका डेरिवेटिव लेना विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी, इसका डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एफ ऑफ डी था डी स्क्वायर प्लस 2d, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी लेना पड़ेगा। डी स्क्वायर का आएगा 2d और प्लस 2d का आएगा प्लस 2, 2d प्लस 2, ये डेरिवेटिव लेना है। ये अब नया पॉलिनोमियल है और ये उसका इन्वर्स ऑपरेटर इस पे चलाना है, एक नया ऑपरेटर इस पे ऑपरेट करना है। तो फिर वो कैसे करना है? वो हमने ऊपर जैसे किया उसी तरह से एफ डैश डी में डी के बजाय ए रखकर, तो इस फॉर्मूले का आउटकम क्या है? x इंटू 1 अपॉन एफ डैश ए इंटू ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, x इंटू 1 अपॉन एफ डैश ए इंटू ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। आगे आपके समझ में? हमें एग्जाम्पल दिया है, हमने d के जगह a रखा, लेकिन हमें पता चला कि f ऑफ a 0 है। तो उस केस में आपको एक स्टेप आगे जाना है और फॉर्मूला लेना है x इंटू 1 अपॉन एफ डैश डी, मतलब ये ऑपरेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल D ले लेना है और वो नया ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल पे फिर से ऑपरेट करना है, वो ऊपर के फॉर्मूला से करना है, जिसमें d की रिप्लेसमेंट a से हो जाएगी 1 अपॉन एफ डैश ए इंटू ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, और ये x इंटू, इस x को ना भूले, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। फॉर्मूला आ गया समझ में? आगे बढ़ना है एग्जाम्पल के लिए, इस पे जो बेस्ड है एग्जाम्पल, ठीक है। फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, आज हम सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल ही सीख रहे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं। फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर माइनस 13d प्लस 36y इक्वल्स टू ई रेस टू 4x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ढूंढना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन राइट हैंड साइड फंक्शन, 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन राइट हैंड साइड फंक्शन इक्वल्स टू, बाय फॉर्मूला क्या रहेगा? रिप्लेसिंग d बाय a की वैल्यू 4 है, d की जगह पर 4 रख देना है और इंटू ई रेस टू 4x, डी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 13 एज इट इज इंटू 4 प्लस 36,
कितना हो रहा है ये 16 माइनस 52 प्लस 36, इट विल बी 0, 1/0 इंटू ई रेस टू 4x। यहाँ पे हो रही है केस फेल। इसे जब डिनो 0 होता है केस फेल कहलाएगा। जब आपका a अगर दिस इक्वल्स टू 0 का रूट हो जाता है एक बार, तो एक बार केस फेल हो गई। तो अब हमको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, x इंटू इसका डेरिवेटिव लेंगे और वो इस पे चलाएंगे, तो x इंटू 1/, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, डी स्क्वायर माइनस 13d प्लस 36 का डी स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी 2d माइनस 13d का माइनस 13 प्लस 36 का डेरिवेटिव 0, तो 2d माइनस 13 x इंटू, अब इस x को साइड में रखेंगे मतलब वो मल्टीप्लीकेशन में, और ये ऑपरेटर इस पे चलाना है, 1/2d माइनस 13 किस पे चलाना है, ई रेस टू 4x पे। तो ये कैसे चलाओगे आप, रिप्लेसिंग d बाय a का वैल्यू 4 है और 4 रखने के बाद में आंसर आ जाएगा 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 13 माइनस 5, x इंटू ई रेस टू 4x अपॉन माइनस 5। ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। आ रहा है आपके समझ में। तो अगर a एक बार रूट होगा तो एक ही बार ये केस फेल होगी, और फिर बाद में ये फॉर्मूला लगा करके आपको आंसर, ये फॉर्मूला और उसके बाद में फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाकर आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। यहाँ तक क्लियर है? एक बार फेल हुआ केस तो x इंटू एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव लिया और वो ऑपरेट किया ई रेस टू ए एक्स प्लस बी पर। यहाँ पर b की वैल्यू 0 है। कुछ पूछना है? आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? आर यू रेडी? शैल आई गिव यू एग्जाम्पल टू सॉल्व बाय योर सेल्फ? चलो, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वेयर माइनस 13d प्लस 36 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल्स टू ई रेस टू 9x। पर्टिकुलर इंटीग्रल आप स्टेप बाय स्टेप लीजिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1/d स्क्वायर माइनस 13। मैम केस फेल होता है 0, केस फेल। हाँ, केस फेल क्यों हो गई? क्योंकि 9 इसका एक रूट है और एक ही बार रूट है, तो एक बार केस फेल होने वाली है। तो उस केस फेल्यूर को आप ओवरकम कैसे करोगे? फॉर्मूला, नया फॉर्मूला लेकर, x इंटू 1/ डेरिवेटिव x इंटू 2d माइनस 13, 2d माइनस 13 ऑपरेटिंग ऑन ई रेस टू 9x, 2d माइनस 13 ऑपरेटिंग ऑन ई रेस टू 9x। d के जगह पे 9 रखो, 2 इंटू 9 माइनस 13। व्हाट इज द आंसर? x into e raised to 9x upon 5. Exactly, perfect. x into e raised to 9x upon 5. Very good अश्विनी, keep it up. लेकिन कुछ सेलेक्टेड लोगों के ही आंसर्स आ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। आशीष, एम आई ऑडिबल? सगळ्यांना? पूजा, किरण, गणेश? Yes. Is this clear? Shall I proceed further? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर आगे जाते हैं। अब्दुल, समझ में आ रहा है अभी? यस मैम। वेरी गुड। आगे बढ़ते फिर, अब कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 1.3, अभी पहला टाइप क्या देखा हमने? टाइप में सब टाइप क्या देखा? पहली बार ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, ए रूट नहीं था तो डी के जगह पर ए ले लिया था और आंसर था 1/f ऑफ ए इंटू ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। इसके बाद में क्या हुआ? दूसरे एग्जाम्पल में एक बार ए रूट है एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0 का,
एक बार ए रूट है एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0 का। तो वहाँ पे 2 स्टेप्स में हमको काम करना पड़ा। पहले हमको रियलाइज़ हुआ कि केस फेलियर है, मतलब रूट है एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0 का। बाद में हमने एक्स इंटू एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव लिया और वो ऑपरेट किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक ही बार रूट था तो फिर सेकेंड टाइम वो केस फेलियर नहीं हुआ और आंसर मिल गया। लेकिन यहाँ पर अगर सपोज ये भी केस फेल होती है, मतलब आपका एफ डैश डी, ये पॉलिनोमियल का इक्वेशन एफ डैश डी इज इक्वल्स टू 0 ए सेटिस्फाई करता है, मतलब ए रूट है एफ डैश डी इज इक्वल्स टू 0 का। अगर ए उसका रूट हो जाता है तो फिर से डी नो 0 हो रहा है, फिर से प्रॉब्लम आ गई। अब क्या करें, फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पर x लिया था पहले, अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव की जगह पे डबल डेरिवेटिव। तो ये फंक्शन को लेना है। बहुत से बच्चे क्या कर लेते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, गलत है। इस फंक्शन पे जाइए और फिर से डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लीजिए, डबल डेरिवेटिव लीजिए, और फिर ये नया ऑपरेटर है जो ऑपरेट हो रहा है एक्सपोनेंशियल पे, तो डी के बजाय ए रख दोगे। इट विल बी एक्स स्क्वायर, दिस इज बाय मिस्टेक, इट इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एफ डबल डैश ऑफ ए इंटू ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू प्रोसीड। एक बार केस फेल होती है तो x इंटू 1 टाइम डेरिवेटिव ऑपरेटिंग ऑन ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। 2 बार केस फेल हो रही है तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एफ डबल डैश एट ए। ये फंक्शन जनरेट हो जाने के बाद में डी की जगह पर ए रखोगे एंड इनटू ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। अगर ये एग्जीक्यूशन आपको समझ में आ गया है तो हम एग्जाम्पल से उसे देखते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल्स टू ई रेस टू 2x। ये नॉन होमोजीनियस एलडी है सेकेंड ऑर्डर का, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी हम निकाल रहे हैं। राइट हैंड साइड फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, तो एज यूजुअल पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी। ये आपका एफ ऑफ डी 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन राइट हैंड साइड फंक्शन, 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन राइट हैंड साइड फंक्शन। तो हमने स्टार्ट किया, पहला फॉर्मूला क्या है, डी के जगह पर ए रखना। ए की वैल्यू है 2, सो मैंने रख दिया 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू ई रेस टू 2x। अब मैंने जब ये कंप्यूटेशन किया तो वी फाइंड कि ये 0 है, तो डीनो 0 हो रहा है, मतलब केस फेल हो रही है। केस फेल हो रही है मतलब इस इक्वेशन का, किस इक्वेशन का, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 का 2 एक रूट है, तो इसीलिए ये केस फेलियर हो रही है। तो पहली बार हमने क्या किया, यहाँ पे ये छोड़ दिया, फिर यहाँ चले गए, लीव इट, इसको इधर छोड़ दो, फिर यहाँ पे जाओ, गो हियर। ठीक है, x इंटू इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डी स्क्वायर का 2d माइनस 4d का माइनस 4 प्लस 4 का 0, x इंटू 1 अपॉन एफ डैश डी एंड दिस शुड ऑपरेट ऑन ई रेस टू 2x। अब ये नया ऑपरेटर फंक्शन है, इसको एक्सपोनेंशियल पे चलाना है। तो बस अब ये कैसे करेंगे, x को एज इट इज रखते हैं, d की जगह पे 2 रखोगे, d को 2 रखा तो फिर क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 फिर 0, फिर से केस फेल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो 2 है ये डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0 का 2 बार रूट है, इसलिए 2 बार केस फेलियर होने वाला है। तो यहाँ पे भी केस फेल हो गया, फिर इसको यहीं पे छोड़ दो और फिर यहाँ चले जाओ, जहाँ से शुरू करते हैं ना फिर वहीं पे जाना है। x इंटू अभी इसका और एक x आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर, ये x था और इसका और एक x इंटू एक्स स्क्वायर, इसीलिए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर है। और इसका 1 अपॉन 2d माइनस 4 का डेरिवेटिव, 2d का डेरिवेटिव 2
और -4 का 0, मतलब इसका टोटल डेरिवेटिव क्या हो गया 2, 1/2, अब ये तो कांस्टेंट है, 1/2 इंटू ई रेस टू 2x। तो आंसर इज एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 2x अपॉन 2। तो पी में एक्स स्क्वायर आया है, मतलब जो भी ए था वो 2 बार रूट है, इसीलिए एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स आता तो 1 बार रूट है, एक्स आता ही नहीं मतलब रूट है ही नहीं, ऐसा। इज दिस क्लियर? आ गया सबको समझ में? अभी हमने क्या देखा कि 2 बार अगर रूट रहेगा तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। अगर सबको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे जाने से पहले मुझे एक पूछना है, अश्विनी सकाळी अशीच होती का स्ट्रेंथ? 11च विद्यार्थी होते का आज? नाही मॅम, जास्त होते. किती होते? 19-20 पर्यंत. मग आता दुपारून का बरं नाही आले? माहित नाही. ठीक है, ये मैथ्स को दोपहर में नहीं रखना चाहिए था शायद। ठीक है, ये समझ में आ रहा है अश्विनी? यस मैम. अच्छा, अक्षय को और एक बार बताना है, मैं बता देती हूँ एक बार ये वाला एग्जाम्पल। हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है इस एग्जाम्पल का, ठीक है? व्हाट आर वी सपोज टू डू? वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस इक्वेशन का पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला है 1/f(d) ऑपरेटिंग ऑन राइट हैंड साइड फंक्शन। ये राइट हैंड साइड फंक्शन है x का, उस पे इसका इनवर्स ऑपरेटर ऑपरेट करना 1/, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। अब फॉर्मूला है 1/f(d) ऑन e raised to ax plus b is replace d by a। replacing d by a will give you डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो मतलब केस फेल हो रही है, तो फिर फॉर्मूला फिर से लगाना है, नया फॉर्मूला। नया फॉर्मूला क्या रहेगा? x इंटू, यहाँ पे एक x आ जाएगा, x इंटू इस ऑपरेटर का डेरिवेटिव ले लो 2d - 4, और अब वो ऑपरेट करो। दिस इज बाय फॉर्मूला। अब ये ऑपरेट करने के लिए क्या करना है? d को a रखना है, a की वैल्यू 2 है, 2 रखा, फिर से केस फेल हो गई। अब केस फेल हो गई फिर से, तो अब क्या करोगे? एक्स स्क्वायर, ये स्टेप पे जाओगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1/, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2d का 2 -4 का 0, डेरिवेटिव इज 2 एक्स स्क्वायर 1/2 इंटू ई रेस टू 2x। ये हो गया सॉल्व, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर ई रेस टू 2x अपॉन 2। इज दिस क्लियर? अभी आ गया समझ में? अक्षय समझ लगा? ओके, वेरी गुड। अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, इसी लाइंस पे है, सेम इसी लाइंस पे आपको जाना है, जैसे मैंने किया ना वैसे ही आप करोगे। अभी फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 operating on y giving e raised to -x। d square plus 2d plus 1 operating on y is equals to e raised to -x। particular integral will be 1/d square plus 2d plus 1 operating on e raised to -x। a की वैल्यू -1 है, d को -1 रखो, तो क्या हो रहा है मैम? एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू -x अपॉन 2। एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू -x अपॉन 2। देखते हैं। यस, परफेक्ट। आंसर इज एक्स स्क्वायर ई रेस टू -x अपॉन 2। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो मुझे पूछिए, आई एम अवेलेबल। यस अब्दुल।
अब्दुल, जी मैम। हो गया आपका? आ रहा है समझ में? हाँ मैम, आ गया। हाँ, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? सब क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमने क्या देखा? अभी एक्सपोनेंशियल लेकिन रूट नहीं था, एक्सपोनेंशियल लेकिन एक बार रूट, एक्सपोनेंशियल 2 बार रूट। अब ऐसा भी हो सकता है एक्सपोनेंशियल और 3 बार रूट, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बाय डिफॉल्ट? अब तो आपको फॉर्मूला समझ आ गया है। 3 बार अगर रूट रहेगा तो एक्स क्यूब, मतलब वो ऑब्वियसली आप स्टेप बाय स्टेप ही जाओगे। एक्स क्यूब 1 ट्रिपल डेरिवेटिव ऑपरेटिंग ऑन e raised to ax plus b, x cube 1 f triple dash of d e raised to ax plus b। ये एक एग्जाम्पल है। फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d minus 1 होल क्यूब ऑपरेटिंग ऑन y इज इक्वल्स टू e raised to x। इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ। d minus 1 होल क्यूब ऑपरेटिंग ऑन y इज इक्वल टू e raised to x। स्टेप बाय स्टेप जाइए आप, ये फॉर्मूला है, ये नोट डाउन कर लीजिए। मैम, यस, बोलिए। एक्स क्यूब यस, इंटू एक्स क्यूब इंटू e raised to x Yes. upon 3।